مسیح کے زندہ اور جلانی نام ہے آپ سب کو سلام. آپ دیکھ رہے ہیں پاسٹر اسلم بٹ یوٹیوب چینل. ہم آج خدا کے خادمی یہاں پہ آئیں گے اور آپ سب کے لیے دعائیں کی جائے گی. آپ اپنی دعائیں اور درخواستیں یہاں پہ بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے جو ہے وہ دعائیں کی جائے اور آپ جو حضور اس پریئر میٹنگ سے جو حضور برکت کو حاصل کریں گے. آپ اپنی دعائیں درخواستیں جو ہمیں کمنٹ باکس میں جو حضور بھیج سکتے ہیں. یہاں پر ہم سب کو بچا تاکہ ہم مل کر خدا تیری حمد کر سکیں, تیری تعریف کر سکیں اور آپ کے بزرگ نام کو عزت دے سکیں, آپ کے بزرگ نام کو جلال دے سکیں. اور ربا 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 جو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ان سب کے لیے بھی ہم دعا کریں گے. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. یسوع کے نام میں, یسوع کے نام میں آج خدا کی خدام آپ کے لیے دعا کریں گے. آج خدا کی خدام برکت چاہیں گے. ہاللیلویا ربا 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 یسوع کے نام میں پہلے خدا اور رکاوٹیں بندھن یسوع کے نام میں تم کے لائق ہے. خداوند خدا تو ہماری پناہ گاہ, ہماری صرف ہماری ڈال, ہمارا محکم قلعہ ہے اور پہلے خداوند خدا ہماری چٹان ہے اور ہمارے چھپنے کی جگہ ہے. پہلے خداوند خدا ہم تیرے ہی پاس آتے ہیں اور تیرے ہی سامنے جھکتے ہیں کیونکہ پہلے خداوند خدا آسمان کے تلے زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں ہے جو ستائش پرست ہے, جو عزت کے لائق ہے, جس کے باعث نجات ہو. واحد یسوع نام ہے جو ہماری نجات کے لیے ہے. اے خدا تیرا قرآن فرماتا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اے خدا تیرے نجات کے سارے انتظام کے لیے ہم سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اے خدا ہر ایک خادم پر تیری برکت تیری بلیسنگ مانگتا ہے, ان کے گھرانوں پر تیری برکت جاتے ہیں. کرے خدا ان دھارا باسی گلورو بوزو توڑو زوبی ان دھارا باسی توڑو زوبی ان دھارا لزوبی. یہوہ میں پکاردا میرے ول تو چیتیا. یہوہ میں پکاردا میرے ول تو چیتیا. جدوں پکارا میں تینو خدایا, جدوں پکارا میں تینو خدایا, سن لے میری گل کن لا میرے ول تو چیتیا. یہوہ میں پکاردا میرے ول تو چیتیا. میری دعا ہن تیرے حضور وچ, میری دعا ہن تیرے حضور وچ پہنچے وانگ بہور دے جا میرے ول تو چیتیا. یہوہ میں پکاردا میرے ول تو چیتیا. دل کھانے ہونا وے چلائے گرا میرے ول تو چیتیا. یہوہ میں پکاردا میرے ول تو چیتیا. یہ خداوند کے بندہ داؤد کی درخواست ہے خداوند کے سامنے کہ وہ اس کی حفاظت و نگہبانی کرے, اس پر ہاتھ رکھے, اس کو بچائے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہے اور بہت سی بری جو دنیاوی باتیں ہیں ان سے ان کو بچا کے رکھے. اور بت پرستی سے وہ خداوند کہتا ہے کہ خداوند کو کہتا ہے کہ مجھے بچا کے رکھ تاکہ میں تیرے حضور میں کامل ٹھہروں. آئے ہم خداوند کی حضوری میں دعا کرنی شروع کریں گے, پھر ہم خداوند کی حضوری میں آئیں گے اور دعا کریں گے. خداوند کی حضوری میں برکت اور سلامتی اور رحم کی اپیل کریں گے. خداوند اپنے لوگوں پر رحم کرے, فضل بخشے تاکہ ہم اس کے جلال میں آگے بڑھیں. ہاللیلویا ربا زندہ ربا ذکرو بوزو توڑو زوبی. تیرے فضل تیرے رحم تیرے طرز کے لیے جو خدا باپ دیکھ تو ہم سب سے خدا اتنی محبت کرتا ہے اور اپنی محبت خدا, اپنے پیار کو خدا, اپنے پاک روح القدس کو خدا تو ہمارے درمیان میں بلکہ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ پاک خدا ہم
उसी मोहब्बत के साथ, उसी पाक रूह कुदस की हदायत के साथ खुदावंद हम इस रूह जमीन पर खुदा, उस खेत में खुदा जो आपने हमें अता किया है, उसमें काम करने के लायक हो जाए पाक खुदा। तेरे उस पाक रूह कुदस के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पाक खुदा। देख तूने हम सबों पर ये बड़ा फजल किया कि पाक खुदा तूने अपने पाक रूह कुदस को हमारी मदद के लिए भेजा, हमारी रहनुमाई के लिए भेजा, हमारी तरबियत के लिए भेजा, और हमें तमाम उन बुरी बातों से, बुरे कामों से, उस बुराई से, उस गुनाह से खुदा उसे बाज रखने के लिए पाक खुदा तूने अपने पाक रूह कुदस को भेजा। और हम घुटनों के बल हो जाएंगे खुदावंद के हज़ूरी में और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। इससे पहले कि हम और ज्यादा आगे बढ़े, घुटनों के बल होकर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं दरख्वास्त करूंगा अपने प्यारे भाई खुदावंद के खादिम पास्टर अनवर शफी से कि दुआ में हमारी लीड करें। हालेलुया, हालेलुया। Lord Jesus, in the name of Hallelujah, hallelujah, hallelujah. के लिए शुक्र करता हूं, पास्टरों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। पास्टर करते हैं खुदा, किस लायक है कि तेरी तारीफ की जाए, तेरी शुक्रगुजारी की जाए। हालेलुया, 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 खुदा की नज़र समझेगा, मुसीबत दे विच फसिया, मुसीबत दे विच फसिया, दुखे आया दुख विच फसिया, दुखे आया दुख विच फसिया, खलासी दे खुदा बुलंदी वही राय देगा, वही बात करेगा, वही मदद करेगा। सच मुझे उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मंगता है, दुआ जो उसको मंगता है, अपने असीरानो खुदा की नज़र समझेगा, अपने असीरानो खुदा की नज़र समझेगा। खुदा देना दिए ज़बान, खुदा देना दिए ज़बान, कद करेगी तारीफ बयान, कद करेगी तारीफ बयान, शुक्राने में मरना मगा बुजुर्गी से दीदा मगा, शुक्राने में मरना मगा बुजुर्गी से दीदा मगा। अब सचमुच उसकी सुनता है, अब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मंगता है, दुआ जो उसको मंगता है, अपने असीरानो खुदा की नज़र समझेगा, अपने असीरानो खुदा की नज़र समझेगा। तेरे रूह से होना चाहिए, तेरे कुदरत से, सारे भाई करते हैं,
करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। लश्करों के खुदा, लश्करों के खुदा, लश्करों के खुदा, लश्करों के पास खुदा, लश्करों के पास खुदा। तमाम जो फेलोशिप की मीटिंग के पार्टी में करते हैं खुदा, हम सब तेरी हुजूरी को कुदरत को मांगते हैं यीशु के नाम में खुदा, यीशु मसीह के बाद से खुदा, अपने जलाल को ज़ाहिर कर, अपने जलाल को ज़ाहिर कर। Oh yes, 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 hallelujah, hallelujah। शाबाश, 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 दुआ करो, बाथरूम में, बाथरूम में, बाथरूम में, सारे दुआ करते हैं खुदा, के अंदर खुदा बहारियत है, बहारियत है, बरकत है, सलामती है खुदा। खादम सरफराज हो यीशु मसीह के नाम से, उसके बच्चों पर सारे खाने पर खुदा तेरी ग्रेस के साथ हुकूमत है यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। मगर खुदा तेरी मोहब्बत शुक्र खुदावंद हम ऐसे चीजों को गले से लगाना चाहता हूं। हौसला देता है और फरमाता है ये देख मेरा दिल ना घबराए, खुदा आसमानी रोटी मैनू खिला दे, आसमानी रोटी मैनू खिला दे, कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे, कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे, भरपूर कर रजा, भरपूर कर रजा, उतरा मेरे दिल दे अंदर, पागरुआ मेरे दिल दे अंदर। 2025 हमारे रूह का साल हो, बाबू के पूरे में सारे लोग साथ हो, सारे पास्टर सरफराज हो, सारे पास्टर की खिदमत के अंदर तेरी बरकत आए, बरकत आए, बरकत आए, बरकत आए, सारी कलीसियाओं के अंदर तेरी ब्लेसिंग आए, तेरे पाकरू का मसा, पाकरू का मसा, पाकरू का मसा, सारे पास्टर को सोखना, साल के शुरू में ये फेलोशिप मिनिस्टर, ये गॉड के चले चले कि उन्होंने कहा कि लॉस एंजल्स से गॉड को दूर रखा जाए। जब खुदाई किसी जगह से दूर हो जाएगा तो वहाँ बचाने वाला कौन होगा, वहाँ पर कौन बचाएगा। लेकिन ऐसे खुदा तू रहीम खुदा है, तू रहम करने वाला खुदा है। तू भी सोचो उनकी सोचों को बदल खुदा, उनके ज़हनों को बदल खुदा, कि वो तौबा करें, रजू लाए खुदा। हम किसी की हलाकत नहीं चाहते, हम किसी मुल्क की हलाकत नहीं चाहते, हम किसी कौम की हलाकत नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि तौबा तक नौबत पहुंचे, तौबा तक नौबत पहुंचे खुदा, लोग तौबा करें खुदा, लोग तौबा करें खुदा, लोग रजू लाए खुदा, तेरे पाक नाम से रजू लाए खुदा, तेरी कुदरत के जोर से खुदा, तेरे पाक का मसा अपने जलाल से खुदा, खुदा के दूर से दिली दुख होता खुदा, बगैर निजात के कोई मर जाए तो खुदा यकीनी तौर पर खुदा के लोगों को दिली दुख होता है, अफसोस होता है। हम चाहते हैं खुदा कि वो तौबा करे, उनकी तौबा तक नौबत पहुंचे खुदा, वो तौबा करे, रजू लाए, और वो जाने कि इस आग को कौन रोक सकता है, वो जाने कि इस आग को कौन रोक सकता है, ये आग किसके इख्तियार में है, वो जाने और उस खुदा की पूजा करे, प्रस्तुत करे, सताश करे। कोरिया के लोगों की तरह वो रोड पर आकर, सड़कों पर आकर हजूम के हजूम खुदा के साथ
सामने दुआ करें कि मालिक हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। हम दौलत और शोहरत के पीछे खुदा तुझे भूल गए और तुझे हमने अपनी जिंदगी में से अलग कर दिया। आसमानी खुदा, क्योंकि तू जिंदगियों का बादशाह है, तू जिंदगी में रहना चाहता है, तू जिंदगियों के अंदर हुक्मरानी करना चाहता है। तू चाहता है कि मेरी हुक्मरानी में ही सब लोग जो है परवरिश पाएं और बरकत पाएं, सलामती को हासिल करें। खुदा कदूस मैं तेरा शुक्र करता हूँ सारे मकासद के लिए। खुदा जहाँ कहीं भी आग है वो यीशु के नाम से आग सारी मदम हो जाए, खुदा खत्म हो जाए। खुदा तेरे पाक नाम से खुदा मेल मिलाप मोहब्बत की रूह आए। खुदा सारी दुनिया के अंदर खुदा तेरा चर्चा हो, तेरी नजात का खुदा शादियाना बजा जाए और तेरे खादिम जब नजात का इश्तिहार दे तो यीशु के नाम से कौमें तौबा करे। खुदा कौमें रजूल आए यीशु मसीह के नाम में। खुदा पाक करो तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तेरे नाम को जलाल देता हूँ। अपनी बड़ी कुदरत के वसीला से खुदा हमारी दुआ को सुन है। खुदा हमारी दुआ तेरे हजूर में है। सारे खादिम अपना हाथ उठा कर कहे, ऐ जिंदा खुदा हम सब तेरे हजूर में दुआस करते हैं। खुदा जहाँ कहीं बदी है, गुनाह है, खुदा उन्हें तौफीक बख्श के वहां पर कोई तौबा करने वाला और वहां पर कोई मुनादी करने वाला हो कि तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, ताकि खुदा ताजगी के दिन आसमान से आए। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। सन 2025 के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता और 26 में आपने अपने लोगों के साथ बड़ी रहनुमाई की। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता और सन 2025 की आज पहली इस मीटिंग के लिए जो खुदा कदूस हमने आज फेलोशिप की, इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता। तेरे खादम पास्टर असलम भट्टी के लिए जिसके घर में फेलोशिप हुई, सारे खादमों के लिए तेरी बरकत चाहता। पास्टर अनवर शफीक के लिए, पास्टर सरफराज के लिए, पास्टर बशीर के लिए, पास्टर तस्लीम अजाज के लिए, पास्टर अयूब, पास्टर असलम के लिए, जितने भाई फैम के लिए, यशवा के लिए, बेटी के लिए, जितने लोग आज इस जमात के अंदर मौजूद हैं, इस फेलोशिप में मौजूद हैं, तमाम के लिए तेरी बरकत को मांगता और तेरी शुक्रगुजारी करता यीशु के नाम में। के नाम से इस घराने की तरफ जो सारी रुकावटें थी, सारे बंधन थे, सारे जुड़े थे, खिदमत के रास्ते जो स्टॉप हुए थे, यीशु नासरी के नाम से इनके कदम रखने से वो सारे बहाल हो चुके हैं। बेटों को ले मेरे खुदावंदा, ताकि ये घराना पहले की तरह खिदमत में साई गरम में तेरे नाम को चला मेरे खुदावंदा, जैसे तेरी बेटी कह रही वैसा ही हो। चले जाए मेरे खुदावंदा, यीशु के नाम में आए मेरे खुदावंदा, क्योंकि अब आप तेरे बेटे इस घर में कोले की मानी बन कर आए हैं, क्योंकि अब आप हम नीम गर्म हो चुके थे, ये धड़कते हुए कोले बनकर आए मेरे खुदा और इन्हें सबों को जलाया मेरे खुदावंदा। इसी तरह ये आग और बढ़े मेरे खुदावंदा और बथेरी जिंदगियों में जाए जहाँ तक अभी तक तेरा कलाम नहीं पहुंचा। वो जिंदगियां जो तौबा की हाजत अभी नहीं रखती, अब आप ये सब जाकर ये घराना भी और बाप जितने खालमदीन है ये इनके घराने भी बाप दूर दराज तक जमीन की इंतहा तक जाकर तेरी खिदमत करे और वो जिंदगियां अब आप पताल से निकाल कर तेरे पास लाए ताकि तेरी गल्ला में शामिल हो सके, तेरे बादशाही को उस्सत मिले, तेरे खेत में अच्छी खेती करने वाले हम सब बने मेरे खुदावंदा। तो तमाम खादमदीन को कसरत से ब्लेस कर बड़ी बरकत दे अपने प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से आमीन। सो आइए मिलकर गीत गाएंगे। मैनू कोई जाने या ना जाने, मैनू कोई जाने या ना जाने, तेरे नाम मिले जलाल यीशु, मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं तेरा है कमाल यीशु। मैनू कोई जाने या ना जाने, मैनू कोई जाने या ना जाने, बेवजूद मैं सनकम्मा दुनिया ते आवारा सा, बेवजूद मैं सनकम्मा दुनिया ते आवारा सा, अपने गुनामा दे मैं कारण होया बेसहारा सा, अपने गुनामा दे मैं कारण होया बेसहारा सा, सूली उते मेरे लिए जान दे के, सूली उते मेरे लिए जान दे के, कर दिता तू मैनू बहाल यीशु, मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं तेरा है कमाल यीशु। मैनू कोई जाने या ना जाने, हालेलुया हालेलुया
साथ कहो, तू मौजूद है, तू मौजूद है, हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Guru. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. खुदा की हज़ूरी यहाँ पर जुम्बश कर रही है। Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। होली 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 होली, you are holy, hallelujah, सबसे जीवगी से हालेलुया, महसूस करें कि उसका रूह मौजूद है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपना हाथ उठा करके थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मंसूरों का हाथ उठा होगा और 2025 के अंदर उसका हाथ नीचे कोई नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप सब खुदा के ममसू हैं। सारे ऊंची आवाज में खुदा के ज़ोर कहो, हालेलुया, 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 खुदावंद का रूह यहाँ पर मौजूद है, खुदावंद यहाँ पर मौजूद है, उसकी पाक हजूरी यहाँ पर मौजूद है। चाहते हैं कि हम उसकी हजूरी के लिए उसका शुक्रिया अदा करें
और कलाम के लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे, शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। खुदा के खादम पास्टर असलम बच्ची से गुजारिश है कि वो शुक्रगुजारी करें कि खुदा का कलाम हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। खुदा के दूत यीशु मसीह में आसमानी बुजुर्ग रब्बुल इज्जत आपकी शुक्रगुजारी करते हुए आपके पास आते हैं। सन 2025 में आपने में फिर फजल दिया कि हम तमाम खुदाम मुत्तफिक होकर एक जगह इकट्ठे होकर जमा होकर तेरे नाम के लिए झुके और आपसे ढेरों बरकतें पाए, ढेरों खुशियां पाए। और खुदावंद जी हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज आप खादमों को खुदाम को फिर हमको आपने जमा किया है, एक जगह पर इकट्ठा किया है। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी सताइश करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पाक खुदा कि आपने में फिर जमा किया, इकट्ठा किया ताकि हम तमाम खुदाम मुत्तफिक होकर एक दूसरे के खानदान के लिए, बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए दुआएं खैर चाहे, बरकत चाहे। मैं तेरे खुदाम के बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ और जो आपने अपने खादमों को खुदा बीवी की सूरत पर मददगार दिया हुआ है उनके लिए बरकत चाहता हूँ, उनके लिए बरकत चाहता हूँ। खुदा बेटों बेटियों के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदा तेरे खादमों के बच्चे खुदा तेरे जलाल में बढ़े, तेरे नाम में बढ़े और खुदा जो पढ़ लिख रहे हैं उन बच्चों की अफवाज कर, रहनुमाई कर ताकि खुदा आने वाले वक्त में खुदा वो बच्चे खुदा तेरे खादिम बने, तेरे सूरमा बने। खुदा में तमाम खुदाम के बच्चों के लिए दुआ खैर बरकत की दुआ चाहते हैं। और खुदा जो रूहानी तौर पर आपने अपने खादमों को बेटियां बेटे दिए उनके लिए बरकत चाहते हैं, उनके खानदानों के लिए बरकत चाहते हैं, उनके घरानों के लिए बरकत चाहते हैं, तेरे खादमों के चर्च के लिए बरकत चाहते हैं, कलीसिया के लिए बरकत चाहते हैं। खुदा खुदा जितनी कलीसिया आपने दी है उन सब के लिए बरकत चाहते हैं, बरकत चाहते हैं। खुदा तेरे खादमों का सन 2025 में और चर्च बढ़े, और चर्च तरक्की करे और तेरे यीशु के नाम में खुदा तेरे खादम खुदा अच्छे तरीके से उनकी देखभाल करें और तेरे यीशु के नाम में बड़े रेवर को खुदा तेरे गला पर सलाम खुदा। और पाक खुदा अभी तक जिन्होंने तौबा नहीं की खुदा वहां पर भी फजल दे कि हम पहुंचे और उनको तेरी खुशखबरी का कलाम सुनाए और वो भी तौबा करें, क्योंकि आप हर बशर की तौबा चाहते हैं, आप पर हर इंसान की तौबा चाहते हैं। आप नहीं चाहते कोई भी हलाकत में मर जाए, आप सब की तौबा तक नौबत चाहते हैं। खुदावंद जी मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ, खासकर खुदा आज मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने खुदाम को मेरे घर में तारा और खुदा ईमान रखता हूँ कि अपने खादमों के साथ तू भी यहाँ पर चल कर क्योंकि खुदा जिस घर में तेरे खादिम जाते हैं, जिस घर में तेरे खुदाम जाते हैं उनके साथ तू जाता है, बरकती आती है, खुशी आती है, शादमानी आती है। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता खुदा कि आज अपने खादमों के वसीला से खुदा मेरे घर में आया है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदा। खुदावंद आसमानी बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा, तेरे पास तो चाहता हूँ खुदा जब तक मैं इस जमीन पर हूँ खुदा, जियो तो तुझ में, मरूं तो तुझ में खुदा तेरी गवाही देता रहूं, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं खुदा और तेरी सताइश करता रहूं खुदा। ऐ खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बच्चों के लिए, औलाद के लिए और खुदा अच्छी बेटी जो तूने मुझे दी इसके लिए भी खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ, तेरी तज़ीम करता खुदा। तेरी बेटी खुदा इसी तरह तेरे हजूर में तेरी खिदमत, तेरे कलाम का प्रचार करे और तेरी सताइश करे खुदा। और खुदा तेरी बेटी खुदा फलदार हो और खुदा मैं तेरी बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए खुदा तेरे हजूर से फल मांगता हूँ खुदा, क्योंकि खुदावंद तूने कहा है अगर औलाद हो तो उनके लिए दुआ करो ताकि वो बेफल न रहे। खुदा मैं यीशु के नाम में खुदा अपनी बेटी के लिए तुझसे ये बरकत की दुआ करता खुदा, तेरे खदाम के साथ मुतफिक होकर खुदा बरकत और ब्लेसिंग की दुआ करता और रूहानी तौर पर भी और ब्लेस कर खुदा। और खुदा तेरे यीशु के नाम में हमारा घराना तेरे यीशु नाम में बढ़ता चला जाए और तेरी सताइश करे, तेरी हमद करे, तेरी तारीफ करे खुदा। अपने यीशु नाम को हमारे ऊपर हमेशा इसी तरह कायम और दायम रखना खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और खास खुदा अब उनके लिए दुआ करता हूँ जितने खुदा हमारे साथ इस वक्त इस दुआया मीटिंग में लाइव जुड़े हुए हैं खुदा, उन सब के लिए बरकत चाहता हूँ। खादिम है, कलीसिया है, जितने भी खुदा
तेरे यीशु के नाम में लाइव लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस दुआया मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं, उनको भी ब्लेस करना, उनको भी बरकत देना। अगर खादिम है उनके चर्च को बरकत दे, उनके बच्चों को बरकत दे। अगर खुदा कलीसिया के लोग हैं जो भी जरूरतें लेकर आज हमारे साथ इस दुआया मीटिंग में 2025 में वो जुड़े हैं, वो आज ढेरों ब्लेसिंग पाए, ढेरों बरकतें पाए खुदा, ताकि खुदावन हम जब भी खुदावन तेरे हजूर में झुकते हैं तो हमें बरकत मिलती है। मैं तेरी शुक्रगुजारी तेरी तारीफ करता हूं। आपके अजीम कदूस यीशु नाम के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन। यीशु नाम के लिए जोरदार तारीफ देंगे। और खुदा के कलाम को हम वेलकम करते हैं। कुरान के खादम पास्टर आरिफ फराज हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनके वसीला से हम खुदा का जिंदा कलाम सुनेंगे। खुदा की शुक्रगुजारी कि खुदा ने इस पोजीशन पर खुदा लेकर आया कि खुदा के कलाम को बयान किया जाए। और ज़िंदगी में हम सब बहुत कुछ बयान करते रहे, लेकिन दिस इज़ ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए ये बड़ा मर्तबा है, बड़ी इज्जत है कि खुदा ने अपने कलाम को डिक्लेयर करने के लिए, खुदा ने अपने कलाम की तशहीर करने के लिए, अपना कलाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें चुना है। और आज मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ पास्टर असलम भट्टी साहब के लिए, उनके बच्चों के लिए, बहू के लिए, अपनी बहन के लिए, इस फैमिली के लिए कि खुदावंद ने आज ने मौका दिया कि ये खुदा के खादमों से बरकत को हासिल करें। और पाक कलाम में लिखा है, बदी के इर्ज़ बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि एक दूसरे के लिए बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए चुने गए हो। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मुक़द्दस कलाम में से यूहन्ना की इंजील, और हम उस आयत पर जा रहे हैं जो बाइबल मुक़द्दस की वर्स से कहा जाता है। हर किताब में की वर्स होती है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस की एक बुनियादी आयत है, एक बड़ी खास आयत है, और आप सब उस आयत से वाकिफ भी हैं। यूहन्ना की इंजील, द गॉस्पल ऑफ जॉन, उसका 3रा बाब और 3रे बाब की 16वीं आयत। ये जिस शख्स को ये आयत समझ आ गई ना, वो जमीन पर भी और आसमान तो फिर है ही। सो जमीन के खजाने, आसमान के खजाने, द ब्लेसिंग ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्स, सब कुछ उसका है। और खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसके 3रे बाब की 16वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो बेटे के लफ्ज पर गौर करते हैं तो बेटा खुदा ने सिर्फ यीशु मसीह को ही नहीं कहा। खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, जब हम अय्यूब की किताब पर आते हैं तो अय्यूब की किताब और उसका 1 बाब, और 1 बाब की खुदा के कलाम में से हम 6ठी आयत पर जाएंगे जरा। और मैं चाहूंगा कि अगर हम इजली रेफरेंसेस को देख सकें तो अय्यूब की किताब, द बुक ऑफ जॉब, अय्यूब, ज़बूर, इमसाल, तो ये तरतीब है इन किताबों की। तो अय्यूब की किताब और उसके 1 बाब की खुदा के कलाम में हम जब जाते हैं जी 6ठी आयत पर, तो यहाँ पर लिखा है, और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया, और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है। तो यहाँ पर खुदा के कलाम में खुदा के बेटे जो है वो फरिश्तों को कहा गया। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ही खुदा का बेटा नहीं है, खुदा के बेटे और भी हैं। फरिश्तों को खुदा ने अपने बेटे कहा। और बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है, और खुदा के बेटे आए। सो फरिश्ते भी खुदा के बेटे हैं, यीशु मसीह भी खुदा का बेटा है। और फिर जब हम खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में आते हैं, जरा हम आगे आएंगे खुदा के कलाम में लूका की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 38वीं आयत पर। और इसके बाद जरा मैं रूटीन से भी आगे बढ़ूंगा। लूका की इंजील उसका 3रा बाब और 3रे बाब की 38वीं आयत खुदा के कलाम में, यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है जी,
तीसरा बाब और उसकी 38वीं यानी कि 38वीं 38 वर्ष है, और खुदा के कलाम में लिखा है, और वो अनूस का, और वो सेत का, और वो आदम का, और वो खुदा का था। और जब आप इस जेनेओलॉजी को, जब आप इस नसबनामे को, नए अहदनामा में 2 नसबनामे हैं, एक मत्ती की इंजील में नसबनामा है, एक लूका की इंजील में है। और जब आप लूका की इंजील के नसबनामे को यहाँ पर खुदा के कलाम में 3 बाब की जब आप 23वीं आयत से शुरू होते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, जब यीशु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 बरस का था। सो यीशु की उम्र भी यहाँ पे हमें क्लैरिफाई हो जाती है। हम किसी को भी कह सकते हैं कि यीशु मसीह 30 साल की उम्र में शुरू किया खिदमत, और ये शरीयत के मुताबिक थी, जैसा कि समझा जाता है यूसुफ का बेटा था। और फिर आगे सिलसिलाकार शुरू होता है, और वो एली का, और आगे सारा सिलसिलाकार है। सो आदम भी खुदा का बेटा था, आदम भी खुदा का बेटा, फरिश्ते भी खुदा के बेटे। और यीशु मसीह के बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि वो खुदा का इकलौता बेटा। यूहन्ना की इंजील, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अब 3 बेटे, फरिश्ते भी खुदा के बेटे हैं, आदम भी, और नस्ले आदम भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आज बहुत से बेटे बेटियां गुमराह हो चुके हैं, बहुत से बेटे और बहुत सी बेटियों को पता भी नहीं है क्योंकि उनका बाप कौन सा है। और जिंदगी में ऐसे हालात होते हैं, बाजुकात बच्चों को पता नहीं होता कि उनका बाप कौन सा है। बेनाम उनकी शख्सियत, बेनाम उनका सारा तौर तरीका, बेनाम उनका नस्बनामा, कुछ भी उनका नाम नहीं होता। और मैंने इन दिनों में ऐसे हालात हुए कि एक फैमिली ने शादी की, बहुत साल पहले, बहुत साल शादी की, और उस बहन की ऑलरेडी शादी भी थी। तो निकाह के बाद उन्होंने सारा एक सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया, शनाख्ती कार्ड को चेंज नहीं किया। और अब जब बात आई है लेटेस्ट दौर में, अंगूठा लगता है, जो है सारी नस्ल को देखा जाता है, खानदान को देखा जाता है, तो औरत का खानदान उस मर्द से अभी भी जुड़ा है, और नया नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नाम के आगे पुराना नाम लगे। और अभी वो बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी तरह मेरा ही नाम चले। बहुत से लोगों के नामों के साथ उनके बाप का नाम नहीं होता। लेकिन पहली तो बात, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम वो हैं जिनके साथ हमारे बाप का नाम है। हम मसीही कहलाते हैं। यीशु मसीह रूहानी तौर पर जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और खुदा का कलाम हमें बताता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद होने का उन्हें हक बख्श दिया। यीशु मसीह के वसीला से हम खुदा के बेटे हैं, बेटियां हैं। और आज बहुत से ऐसे हैं जो आदम के तो बेटे हैं लेकिन यीशु मसीह के बेटे नहीं हैं। आदम का बेटा होकर कोई हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकता। यीशु मसीह का बेटा बेटी बनेगा तो हमेशा की जिंदगी पाएगा। खुदा के कलाम में से हमें इस चीज पर हम आमतौर पर कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है और हम इसको बड़े ईमान से कहते हैं। लेकिन हमें कुछ प्रूव भी तो करना पड़ता है। ठंडा पानी है तो ठंडे पानी को प्रूव करना पड़ेगा कि वो ठंडा है। एक गिलास में पानी है, आपको कैसे पता है कि वो पानी ठंडा है? आप जब तक उसमें हाथ नहीं डालेंगे या जब तक उसे पिएंगे नहीं। देयर आर 2 वेज, और भी हो सकते हैं शायद, लेकिन बुनियादी तौर पर 2 ही तरीके कार है। या आप पी के चेक कर लें या आप डाल के चेक कर लें, फिर आपको पता चलेगा। अब यीशु मसीह खुदा का बेटा है तो उसके लिए या तो हम कलाम को पी लें या कलाम को अपने अंदर ले लें या फिर कलाम में जाएं, तो फिर हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और मैं इस चीज पर बहुत गौर करता हूं कि यीशु मसीह सिर्फ खुदा का बेटा ही नहीं है, इकलौता बेटा ही नहीं है। यीशु मसीह और भी बहुत कुछ है। अब खुदा के कलाम में से हम देखते हैं कि यीशु मसीह और क्या कुछ है। लूका की इंजील उसका 3 बाब, लूका की इंजील 3 बाब और उसकी खुदा के कलाम में से हम देखते हैं 21वीं और 22वीं आयत। 2 आयत पर हम गौर करते हैं जरा यहाँ पर भी कि यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है कि खुदा का इकलौता बेटा।
اور یہاں پر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں گے بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اور 3 باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا. یہ بڑا کمال ہے کہ بعض اوقات کلیسیاؤں میں بپتسمہ لیا گیا, اوکے ویری گڈ, وی ہیو بین بیپٹائزڈ, بپتسمہ ہو گیا, بات کہانی ختم. لیکن یسوع مسیح کا بپتسمہ دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا, اس کا مطلب ہے کہ بپتسمے کے پاس بعد دعا میں بھی جھکنا ہے, دعا میں بھی ٹھہرنا ہے تاکہ روح القدس کا بپتسمہ بھی ہم پائیں. اور پاک کلام میں لکھا ہے دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا. میں ابھی میرے ذہن میں وہ تفسیر نے انگلش ورژن اسٹڈی بائبل جہاں پر مجھے وہ ڈیٹیل ملی کہ یہاں پر تو ہے کہ آسمان کھل گیا, لیکن یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا, یسوع مسیح نے جب دعا کرنی شروع کی تو آسمان نہیں بلکہ تینوں آسمان بیک وقت یسوع مسیح کے لیے کھل گئے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے all these blessing, یہ تمام برکات ہم بھی پا سکتے ہیں. یہ تینوں آسمان ایک وقت میں ہمارے لیے بھی کھلتے ہیں. اور خدا کے کلام میں آگے لکھا ہے اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے. یسوع مسیح صرف اکلوتا بیٹا ہی نہیں بلکہ یسوع مسیح خدا کا پیارا بیٹا ہے. پیارا بیٹا آدم نہ بن سکا, پیارے بیٹے جو ہیں فرشتے نہ بن سکے, پیارا بیٹا یسوع مسیح, اکلوتا بیٹا یسوع مسیح. اور جب کوئی خدا میں پیوست رہتا ہے تو خدا اس کی عزت بڑھاتا ہے, خدا اسے سرفراز کرتا ہے. اور زبور کی کتاب میں لکھا ہے عزت تیری ودائے گا یعقوب دا خدا. خدا یسوع مسیح جب خدا میں پیوست رہے, خدا کی مرضی کو پورا کیا, آخری وقت تک کہا اے باپ اگر تیری مرضی ہو تو یہ پیالہ ٹلے. اور خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب پیوست رہا تو یسوع مسیح کو وہ نام بخشا گیا جو نہ آسمانیوں کو نہ زمینیوں کو بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا آسمانیوں کا زمین والوں کا یسوع مسیح کے سامنے جھکے گا, اقرار کرے گا کہ یسوع ہی خداوند ہے. تو یسوع مسیح صرف اکلوتا بیٹا نہیں ہے, یسوع مسیح خدا کا پیارا بیٹا بھی. اور خدا کے کلام میں اگر ہم جناب موسیٰ پر غور کریں تو مقدس موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے, the man who spoke to God, جس نے خدا سے بات کی. اور خدا بڑے بڑے ٹائٹلز دیتا بھی ہے. خدا جدون کو کہتا ہے سورما کہتا ہے, حالانکہ ایک ایسا شخص وہ ڈر رہا ہے تو خدا سے سورما کہتا ہے. خدا ابراہم کو ابراہم بنا دیتا ہے. تو خدا جو ہے ایلیویٹ کرتا ہے پوزیشنز کو. یسوع مسیح خدا کے اکلوتا بیٹا, یسوع مسیح خدا کا پیارا بیٹا بھی ہے. اور خدا کے کلام میں ایک اور یسوع مسیح کی فضیلت کو, یسوع مسیح کے مرتبہ کو دیکھیں گے. خدا کے کلام میں لوکا کی انجیل, ہمارا فوکس زیادہ لوکا ہی کی انجیل پر ہے. لوکا پر آج میں غور کر رہا تھا کہ مقدس مریم کسی بھی جب بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں نا تو وہ ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں. آپ میں کہتا ہوں جی آپ کو یہ مرض ہے, اوکے یہ میری زمینی حالت ہے, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں نے آپ کے زخم کو دیکھا کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے, لیکن اس کی اوریجنل تصدیق جب ایک ڈاکٹر کرے گا, وہ ٹیسٹ کریں گے. مقدسہ مریم خدا کے کلام میں بائبل مقدس میں آج پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ایک کنواری کو خدا نے ماں بنایا, اور خدا کے منصوبے بڑے کمال ہیں. اب اس وقت کا ڈاکٹر کوئی ہونا چاہیے تھا جو اس چیز کو تقدیس سے کہہ لیتے اس کی تصدیق کرتا کہ ہاں یہ کنواری ہے. خدا کے کلام میں لوکا ایک طبیب ہے اور اس چیز کی تصدیق کرتا ہے, ایک سرٹیفائیڈ کرتا ہے کہ ہاں کنواری سے بیٹا پیدا ہوا ہے. اور خدا کے کلام میں
हम जरा आगे देखेंगे लूका की इंजील उसका 9वां बाब, और 9वें बाब की खुदा के कलाम में से हम बाइबल मुकद्दस में से देख रहे हैं जी उसकी 35वीं आयत को। लूका की इंजील 9वां बाब और 9वें बाब की खुदा के कलाम में से 35वीं आयत को खुदा के कलाम में से हम देख रहे हैं। और यहाँ पे 9वें बाब की खुदा के कलाम में 35वीं आयत, और खुदा के कलाम में यहाँ पर लिखा है 34वीं आयत से आ रहा हूँ, बल्कि मैं 33वीं आयत से आ रहा हूँ क्योंकि सिलसिला जरा बन जाएगा। जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा, ए उस्ताद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हम 3 डेरे बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। सजेशन बड़ी जबरदस्त थी क्योंकि मुकद्दस पतरस ने जो है वो एलिया को, मूसा को खुद हम यीशु मसीह से बातें करता सुना था, देखा था। अब मूसा बनी इस्राएल में द मोस्ट मिरेकलस प्रॉफिट, मौजात, बड़े बड़े मौजात। एलिया एक जोशीला, एक बड़ा ईमान, और एक जो कुछ कहता हो जाता, 3.5 साल आसमान बंद कर देने वाला, वो भी कमाल है। लेकिन पाक कलाम में लिखा है, लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया। बादल मीन यहाँ पर हम कह सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी। इसमें सिर्फ बादलों पर ही आना। हालेलुया। जब मूसा के वक्त में पहाड़ पर बात करनी थी तो बादल आते थे, दिन को बादल, रात को शोला। सो बादल को यहाँ पर खुदा की हुजूरी, वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया। और जब वो बादल में गिरने लगे तो डर गए, और बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बरगजीदा बेटा है, यीशु मसीह इकलौता बेटा है, यीशु मसीह प्यारा बेटा है। और यीशु मसीह बरगजीदा बेटा है। बरगजीदा के मीनिंग को आप देखेंगे तो इसका मतलब है चुना हुआ, चूजन वन। देयर वर लॉट ऑफ, बहुत से बेटे थे, लेकिन उनमें से जो बेटा जो है सादिकल कौल है, जो कामयाब है, वो यीशु मसीह है, जिसे खुदा ने चुन लिया कि वो हकीकी बेटा है। यीशु मसीह इकलौता बेटा, यीशु मसीह प्यारा बेटा, और यीशु मसीह चुना हुआ बेटा। अब खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि यीशु मसीह इकलौता भी है, यीशु मसीह प्यारा भी है, यीशु मसीह बरगजीदा भी है। और खुदा के कलाम में से हम एक और टाइटल, एक और यीशु मसीह की कुदरत को देखते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है रोमियो के नाम, रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और पहले बाब की खुदा के कलाम में से हम 4थी आयत को देखेंगे। और यहाँ पर लिखा है पहले बाब की 4थी आयत में, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। अब यीशु मसीह प्यारा भी हो गया, यीशु मसीह बरगजीदा भी हो गया, और यीशु मसीह कुदरत वाला बेटा भी है। अब इतना खास बेटा है, और उस बेटे ने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दे दी है। अब खुदा बहुत कुछ करता है, तो खुदा चाहता है कि खुदा के लिए भी कुछ किया जाए। बेटे ने बहुत कुछ किया है, खुदा चाहता है कि बेटे के लिए भी कुछ किया जाए। अब खुदा के दिल की डिमांड क्या है? खुदा के कलाम में हम देखते हैं ज़बूर की किताब में, जरा इसे कंक्लूड करने की तरफ जा रहा हूँ जल्दी से। खुदा के कलाम में देखते हैं ज़बूर की किताब, ज़बूर की किताब जी, आपके पास टाइम कम है। टाइम बस इसीलिए मैं जल्दी से हो गया हूँ। ज़बूर दूसरा बाब है, उसकी दूसरा बाब, ज़बूर की किताब उसका दूसरा बाब, और दूसरे बाब की खुदा के कलाम से हम देखेंगे ज़बूर दूसरा बाब और दूसरे बाब की 12वीं आयत खुदा के कलाम में। और खुदा की डिमांड क्या है कि इतना प्यारा बेटा, इतना अजीम बेटा, इतना चुना हुआ बेटा खुदा ने कुर्बान कर दे। तो खुदा क्या कहता है जी? खुदा के कलाम में दूसरे बाब की 12वीं आयत में लिखा है ज़बूर की किताब में, बेटे को चूमो, ऐसा न हो
कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने पर। दिस इज़ वेरी नियर, बहुत नज़दीक है कि यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। और फिर 3.5 साल, और फिर बड़ा, अभी तो एक आग ने वक्त डाला हुआ है, जब पूरी दुनिया में रफड़ होगा तो फिर क्या होगा। सो खुदा के कलाम में, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है, मुबारक हैं वो सब जिनका तवक्कुल बेटे पर है। खुदा की डिमांड ये है कि खुदा के बेटे को चूमा जाए, और जो इसको नहीं समझते, फिर रोमियो के नाम, फिर मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है कि जिन्होंने खुदा की खुदाई को पहचाना नहीं है, खुदा ने उन्हें नापसंदीदा अकल के हवाले ताकि नालायक हरकतें करें। अब हमने देखना है कि हमारे पास खुदा का कलाम है, हमारे पास किताब है, हम पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हमें समझाने वाले भी हैं, सब कुछ है, तब फिर भी हम यीशु मसीह को कबूल ना करें तो फिर हम हमेशा की ज़िंदगी नहीं पा सकेंगे। मसीहों में एक बहुत बड़ी उम्मीद है, बाइबल मुकद्दस में एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि यीशु मसीह को कबूल करें तो हमेशा की ज़िंदगी। दरोगा इस चीज़ को समझ गया, उसने कहा ए साहिबो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, और कहा गया यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। कोर्नेलियस इस चीज़ को समझ गया, उसने पतरस को बुला लिया, और पतरस ने उससे बातें की, उसने अजीज़ों को भी बुला लिया, वो निजात पा गए। आज बहुत से लोगों को ज़रूरत है यीशु मसीह की, ज़रूर है यीशु मसीह को, जो खुदा का इकलौता बेटा है, जो खुदा का प्यारा बेटा है, जो खुदा का चुना हुआ बेटा है, जो खुदा का बर्रा है, जो कुदरत वाला बेटा है, उसे कबूल किया जाए ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाई जाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र। आज हम अपने कदमों पर खड़े होंगे कुरान फेलोशिप मीटिंग में 2025 के जो पहली हम ये मीटिंग कर रहे हैं। चाहते हैं कि सभी अपनी अपनी दरख्वास्तें, अपने अपने प्रोग्राम जो हैं वो आपने मुनक्किद किए हैं उनके बारे में बताएं, और ताकि हम उन सब के लिए दुआ कर सकें। रूहानी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आमीन। ताकि जो फैसले हों खुदा के मुताबिक। रूहानी बेदारी के लिए, हम अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। बेटा रफान है, इसके लिए कुछ ठीक भी नहीं है मसले के। वो जो असर था ना बाप का, वाला साहब तो चले गए, लेकिन उस दिन से ये बीमार है। अभी ठीक है, मैंने रोज़ा रखा है, परसों दुआ की है तो ठीक है, लेकिन बहुत ही बीमार था। सो बहुत खुशी आज सबको देखकर, और यहाँ पर दुआ में बड़ी शादमानी है। 2025 के अंदर हम सब ने फिर से दोबारा इस फेलोशिप में हम सब आए हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं उस खुदा की कि उस पिछले साल में खुदा ने बहुत बड़े बड़े काम किए और हमें सरफराज किया, हर तरह से महफूज रखा, और खुदावंद के फजल से यकीनी तौर पर मैंने और आप सब ने अपनी अपनी कलीसियाओं में बहुत बरकत पाई होगी, और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा उस खालिक का शुक्रगुजार हूँ, उस मसीहा को जिसके बारे में हमने मुनादी सुनी है, और हम सब इसके लिए शुक्रगुजार हैं। तो प्यारे भाइयों, मैं चाहता हूँ इसी तरह हम सब इसी दुआया हालत में, दुआया इस इबादत को जारी रखें, और इस दुआ में यकीनी तौर पर हम सब खुदा से बहुत बरकत पाएंगे, और हम पा भी रहे हैं। और यकीनी तौर पर ये एक प्यास थी, भूख थी कि हम दोबारा इसको शुरू करें, ताकि इस फेलोशिप के वसीला से हम सब मसीह में बढ़ सकते हैं, मसीह में तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम दूसरे से रफाकत ना रखें, मेल मिलाप ना रखें, तो इन्हीं चीज़ों के अंदर ही हमारी बढ़ोतरी है, हमारी खुशियाँ हैं। सो मैं शुक्र करता हूँ, गवाहियाँ तो नहीं बहुत लंबी गवाहियाँ होंगी। सो मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस साल में भी खुदा नए दरवाजे खोले और अपनी कुदरत के जोर से हमें ब्लेस करे, ताकि हम अंजील को लेकर दूर दराज तक जाएं और खुदा की खिदमत को रूह और सच्चाई से करें, ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। जो हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, जो खुदावंद के साथ हमने वादा किया था, उसको हम पूरा कर सकें। ये तौफीक बख्शे खुदा। सो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बस यीशु के बरकत और जलाली नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम जी। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि मेरा बेटा जॉन है, और वो जो कुछ काम करना चाहता है उसमें बड़ी रुकावटें आ रही हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप सब आदमी उसके लिए प्रे करें। बेटा जॉन है, मेरे बेटे का नाम जॉन है, तो उसके लिए आप प्रे करें ताकि खुदा उसको अपने जलाल के लिए उस कारोबार में उसे बरकत दे, और खुदा अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाए ताकि वो रुकावटें जो है वो जाती रहें।
मसीह में आप सबके सलाम। पिछले साल के अंदर खुदा ने बड़ा काम किया सन 2024 में, और अब ये 15वां साल शुरू हो गया मुझे खिदमत में आए में, और 13 साल में इतना काम नहीं किया जितना खुदा ने 14 साल में काम किया। और अब मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा ने माली तौर पर भी मैं सपोर्ट की, कलीसिया तौर पर भी, हर लिहाज से, और जिस्मानी तौर पर भी खुदा ने मुझे बड़ी सेहत दी है कि ताकि हम ज़्यादा खुदा का काम करें। और सन 2025 के अंदर मैंने खुदा से कहा कि जो करप्ट लोग हैं, शराब पीते हैं, जहाँ जादूगरी करते हैं, ऐसे लोगों के पास भेज ताकि उनको कलाम सुनाएं। और खुदा ने साल चढ़ती 2 रूहें दी, और एक ने परमट पाड़ दिया जो शराब का बनाया था, और दूसरा जादूगरी करता, वो भी कहता मैं तो खुदा की तरफ उसके साथ उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और मसीह के नाम को जलाल और मेरी रूहानी तरक्की के लिए दुआ करें ताकि रूहानी तौर पर खुदा मुझे और मेरी फैमिली को ज़्यादा पुख्ता करे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। बहुत खुशी हुई सबके चेहरों को देखकर। दोबारा हम 2025 में मिले हैं, तो खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरी अपीलें हैं चंद जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यकीनन दुआ के वसीला से बंधन टूटते हैं, जुड़े टूटते हैं। आमीन। तो पहला तो ये है कि हमारी रूहानी तरक्की के लिए दुआ की जाए, और इस साल में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, और जैसे भाई मुनीर ने कहा है कि लोग निजात पाएँ, गफलत की जो नींद है उससे उठें, जागें, और खुदावंद का नूर जो है उन पर चमके। दूसरी हमारी अपील जो है ये है कि बड़ी बेटी है ना, उन्होंने स्कूल खेला CEC जो है वो कम्युनिटी सेंटर है, तो वो रजिस्टर होने के लिए दिया है। दुआ करें कि वो काम जो है वो जल्दी हो जाए। और तीसरी जो है वो अपील है कि ये 29, 30 और 31 को हमारा प्रोग्राम है आसिफ टाउन में, तो बाहर से खादम आ रहे हैं, तो दुआ करें कि खुदा वहाँ पर बहुत सारा काम करें, और अबलीस के बंधन जो है वो टूटे, और वहाँ पर लोग जो हैं खुदा उनके पास हैं। मसीह में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आज फजल दिया, बरकत दी कि आप सब खुदा सन 2025 में हम सब जहाँ जमा हुए, इकट्ठे हुए, ताकि इस दुआया मीटिंग को फिर उसी तरह बहाल किया जाए जैसे हम 2024 में करते रहे। क्योंकि क्रिसमस की मसरूफियात की वजह से, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम थे, तो ये दुआया मीटिंग रुकी थी। तो आज पास्टर बशीर साहब ने इंतज़ाम किया हुआ था दुआया मीटिंग का। मैंने कहा नहीं मेरे हाँ, ताकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि शादी का फंक्शन भी हमने किया तो कोई बात नहीं हुई, तो आप खुदाम साहब आए ताकि हमें ब्लेस करें, बरकत दें। तो उस बात के लिए बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। 2024 में बेटे की शादी थी, उसमें खुदा ने हमारी बड़ी सपोर्ट की, हमारी बड़ी ही जो है मदद की है खुदा ने। तो ये खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी है। और अब 2025 में ये चाहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें कि हम खुदा का काम जो है कर सकें रूहानी तौर पर। यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने 2025 में ये मुमकिन किया है कि हम सब एक बार फिर यहाँ पर जमा होकर खुदा की ताज़ीम कर सके। हमने सिर्फ बाइबल मुक़द्दस में ये पढ़ना नहीं है कि क्या ही खुशी की बात है कि भाई मिलकर मान रहे हैं, बल्कि ये करना है। आमीन। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरी प्रमोशन के लिए खुदा के लिए दुआ करें, ताकि 2025 और आने वाले साल जो हैं हम सबों के लिए, मेरे लिए पाकिस्तान में बरकत का बाइस रहे। मेरी तरफ से सबको सलाम। पहले तो मैं शुक्रगुजार कि खुदा ने मुझे आप सबके साथ शामिल किया कि मैं आपका हिस्सा बनी। और दूसरी बात यह है कि मेरे ख़ानदान के लिए स्पेशली दुआ करें, क्योंकि अब्बू खुदा की मर्ज़ी है जो भी, लेकिन बहुत हद तक वो करके गए। उसके बाद भाई को लेके हम सारे बड़े टेंशन्स में हैं। तो लेकिन ये है कि खुदा उन कभी नहीं छोड़ता। अगर अब्बू ऐसी कंडीशन में थे, लेकिन खुदा ने हमारे ईमान को मजबूत रखा। हम सारी फैमिली दुआगो हैं, मेरे आप ही हैं, भाई सारे, इवन छोटे बहन भाई जो अब्बू भाई के बच्चे हैं वो भी। दुआ में ये है कि मेरा इस ख़ानदान में जुड़ना खुदा की मर्ज़ी है, और मैं चाहती हूँ कि आप सारे मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मुझे इनके साथ मिलाकर जहाँ तक हो सकता है खुदा मुझे इस्तेमाल करे। मैं हाजिर।
तो आए हम दुआ करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि असलम फैमिली के लोग जो हैं वो आ जाएं ताकि हम मिलकर उनके लिए दुआ करें और दुआ करेंगे। और इनमें लीड जो है हमें पास्टर बशीर साहब करेंगे। हालेलुया। कुर्बानी तेरी सारी करे आपे हो कबूल, कुर्बानी तेरी सारी करे आपे हो कबूल, नज़रा तेरी आलूगियो याद करेगा, ते नज़रा तेरी आलूगियो याद करेगा, दुखां दे वेले तेरी आवाज़ सुने दुआ, बख्शेगा तैनू सब जो तेरे दिल दी है मोरा, बख्शेगा तैनू सब जो तेरे दिल दी है मोरा, पूरा करेगा हो तेरा मतलब जरा जरा, पूरा करेगा हो तेरा मतलब जरा जरा। ऐ खुदावंद जिंदा खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हम हादसाती तौर पर नहीं आए खुदा, क्योंकि तेरे प्लान के तहत आए हैं खुदा, ताकि खुदावंद ये घराना तेरे पाक नाम से सरफराज हो जाए और 2025 के अंदर खुदा इन सबको ब्लेसिंग मिले, बरकत मिले खुदा, और तेरी कुदरत इनके साथ हो जाए खुदा। ऐ खुदावंद जो इब्लीस के हाथों में दुख उठा रहे हैं, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में खुदा, और तेरे पाक नाम की वजह से खुदा इस बेटी के सारे घराने को हम सब तेरे खून में छुपाते हैं और दुआ करते हैं वहां पर फतहमंदी यीशु नाम की हो, यीशु नाम की फतहमंदी हो, यीशु नाम की फतहमंदी हो, और तेरे खादम का घराना यीशु के नाम से सरफराज हो खुदा। और इस साल के अंदर एक कलीसिया मजबूत करना खुदा इनके साथ खुदा, ताकि खुदा तेरे जलाल में और तेरी खिदमत में खुदा ये बड़े यीशु मसीह के नाम में और तेरी कुदरत के जोर से खुदा इन्हें बरकत मिलती जाए, सलामती मिलती जाए खुदा, तकमीयत मिलती जाए खुदा। मैं सारे खादमों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ जिस वक्त हम ईमान होकर खुदा दुआ कर रहे हैं और तेरे नाम को जलाल दे रहे हैं, तेरी स्ताइश कर रहे हैं, तेरी पाक रूह के वसीला से खुदा, तेरी कुदरत के जोर से खुदा इन्हें बरकत मिले, सलामती मिले खुदा। ऐ खुदा कदूस, जो सारी दरख्वास्तें हैं तेरे हजूर में खुदा जो लाई गई हैं, जो मुख्तलिफ खुदा तेरे खादमों ने तेरे मबसूओं ने बताई हैं, आसमान के खुदा तूने उनको कान लगाकर सुना है, तूने खुद सुना है खुदा। मैं ईमान रखता हूँ कि हम सब उन दरख्वास्तों को तेरे तख्त के सामने रख देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम से तेरे सामने रखते हैं खुदा। अपने जलाल को ज़ाहिर करना यीशु के नाम में खुदा, और आने वाले बुध को जब दोबारा हम सब जमा हो तो ऐ खुदा इनके जुबान से बड़ी बड़ी गवाहियां निकले खुदा, ये बताएं कि यीशु ने मेरी जिंदगी में बड़ा काम किया है, क्योंकि वो बहाल करता है, वो नजात देता है और रूह कुदस बख्शता है। क्योंकि 2025 जो है वो रूह कुदस का साल है, आजादी का साल है, नजात का साल है, बहालियत का साल है। यीशु के नाम से बहुत सारे लोग खुदा के करीब आएंगे, यीशु पर ईमान लाएंगे और यीशु पर ईमान लाकर बहुत सारे लोग निजात पाएंगे। आपके वसीला से, आप सबके वसीला से जब आप इंजील सुनाएंगे तो यीशु के नाम से खुदा की कुदरत ज़ाहिर होगी और बहुत सारे लोग ईमान लाएंगे। आसमानी खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं सबसे छोटा तेरा खादिम हूँ खुदा। अपने कलाम की खिदमत के लिए खुदा मुझे जोर दे, मुझे हिकमत दे, मुझे दानिश दे, मुझे समझ दे खुदा। हम सब हिकमत और दानिश के साथ तेरी खिदमत को करें खुदा और तेरे नाम को जलाल दे। मैं सारे खानदानों के कलीसियाओं के लिए तेरे हजूर में दुआ करता हूँ खुदा, इनकी कलीसिया इस 2025 के अंदर बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में, और खुदा इनके खिदमत के खेत बढ़ जाए खुदा, दुआ में हदें बढ़ जाए खुदा, और तेरे पाक नाम को जलाल दिया जाए खुदा। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। आज हम सब शुक्रगुजारी करते हैं, अपने हाथ को उठाकर कहो शुक्रगुजारी करता हूँ, शुक्रगुजारी करता हूँ। आसमान जमीन के खुदा हम सब शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। अपने पाक नाम के वसीला से खुदा इन्हें संभाल, मदद कर,
रहनुमाई कर। आज जितनी भी हमने दुआएं की हैं, अब तक में जो दुआएं की जा रही हैं, मैं तेरा खादिम भी दुआ कर रहा हूँ। खुदा कदूस, तूने उसको सुन लिया है और तू जल्द हमें जवाब देगा। हम सब ईमान लाते हैं। ऐ खुदा, इस बेटे के लिए खास दुआ करते हैं, तो इसे तूने आजाद कर दिया है अपने खादिम के वसीला से। और खुदा ये आजाद रहे, यीशु के नाम से आजाद रहे, यीशु के नाम से आजाद रहे। और इब्लीस इसके पाँव के नीचे हो यीशु मसीह के नाम में। इब्लीस इनके पाँव के नीचे हो यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। खुदा अपनी कुव्वत और कुदरत के जोर से तू सबको संभालना। जिस तरह सलामती से तेरे खादिम आए हैं, सलामती से अपनी कलीसियाओं में जाएं और खुदा तेरे नाम की मुनादी करें और तेरे पाक नाम को जलाल मिलता जाए। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम सब मिलकर खुदा की सिखाई दुआ में पूरी होती है। हमारा आज मिले और जिस हमने अपने गुनाह को माफ किया है, कभी हमारे कसूर माफ कर, हमें जनाई बल्कि बुराई से बचा, बादशाह कुदरत हमेशा तेरे हैं। कलमा उसकाज के लिए पास्टर ने खुदा ईश्वर मसीह की मोहब्बत, रूह कुदस की रफ़ाक़त और शराकत कुल मुकस्सिन लोगों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ और तमाम जो यहाँ पर मौजूद खादम है, इन सब के साथ, इनकी फैमिलियों के साथ और फैमिली के साथ हमेशा हमेशा। यीशु आप सबको बरकत दे। आप सब आमीन आमीन आमीन। सबकी सलाम।